This is denoted by m in suffix x and t, and which is equal to expectation or expected value of e to the power tx. Similarly, we will find probability generating function as. This is denoted by Px of s is equal to expected value of s to the power x. Yes, ma'am. So now let us construct a table by using an example. Okay, कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे x की वेरियस वैल्यूज के लिए, अब हम देखते हैं. If x is equal to, this is given in your notes, so I'm using, okay, if x is equal to 0, 1, 2, 3 and p x for x, small x represent the values, okay, is equal to p0, small p, p1 and p2. Then let us construct table for probability generating function, means to find expected value of e to the power expected value of s to the power x. Here we have x and p, or we can write here p x equal to small x also. Okay, even we can write p or in this way. Okay, ma'am. Meaning the same probability. Okay, Yes, ma'am. and s to the power x and then expected value. X is equal to 0, 1, 1, 2, p0, p1, P1, and p2. Here we will have s to the power 0, s to the power 1, or we can write s itself. S square. Next is S square. Here we have actually. Now, expected value of s to the power x is equal to, as we know, we will add as s0
into P0 plus S to the power 1 into P1 plus S square into P2. Because we find expected value in this way. Remember its formula? Yes, ma'am. I'm writing separately also once. Expected value of X is equal to summation X into Px. Yes, ma'am. Or we can write as P also. Means whatever we have here, we multiply with corresponding probability. So here we have S to the power X and its corresponding probability. So we will add all terms to find expected value. Got it? Yes, ma'am. So expected value of S to the power X is equal to S to the power 0 into P0 plus S to the power 1 into P1 plus S square P2 and plus up to so on. Or its value is 1 when we take any number to the power 0, its value is 1. So we can represent it as P0 S to the power 1 into P1 plus S square P2 plus up to so on. And this is probability generating function. Yes, ma'am. P x of S is equal to expected value of S to the power S. Hence, P x of S is equal to P0 plus to S to the power 1 into P1 plus S square into P2 plus up to so on, which is probability generating function. Okay, ma'am. Got it? Which is probability. Yes, ma'am. Which is same as, this is same as PS. Yes, ma'am. Remember? Hmm. Or simply we can write Yes, ma'am. P x of S is equal to PS. So PS is equal to expected value of S to the power X. Or summation K is equal to 0 to infinity S to the power K into PK. Okay. Yes, ma'am. Now let us know about mean and variance.
Ma'am, Hmm? Yes. I thought I was not able to. So, Pardon? Are you saying so something? ma'am, yes, ma'am, I'm not able to see the next topic. Where are you writing? Okay, okay. I didn't start yet. Okay. I just Okay, open ma'am. your PDF. I'm writing now. Mean and variance of x using PS. Okay. X using PS. So to find mean, we differentiate PS. Okay, one time. And to find variance, we differentiate twice. Means second order derivative we will find. Since PS is equal to P0 plus P1 into S plus P2 into S square plus P3 into S cube plus up to so. To find mean, differentiate PS. मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि मीन के लिए एक बार डिफरेंशिएट और वेरिएंस के लिए दो बार? हम्म मैम देखो व्हाई आर वी डिफरेंशिएटिंग? ये ऑलरेडी ड्राइवन फॉर्मूला है। एक्चुअली क्या है कि मीन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये है। ठीक है, ई एक्स इज मीन। ओके मैम। ओके, तो हमें इसी टर्म में करना है ड्राइव। ओके, मैं पहले इधर साइड से लिख देती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन एंड वेरिएंस क्या होते हैं। मैं साइड से बता देती हूँ। अब हमें उनको इन टर्म्स ऑफ पीएस फाइंड करना है। मीन एंड वेरिएंस यूजिंग EX और एक्सपेक्टेड वैल्यू in terms of expected value. Mean is equal to EX। तो अब हमें क्या करना है कि PS के थ्रू ये लाना है। ओके ओके मैम। इसलिए हम वन टाइम करेंगे। और वेरिएंस इज इक्वल टू E of x square minus EX whole square. This is formula of variance. To find them, we differentiate PS one time for mean and two times for variance. Okay, let us see. ओके मैम। Differentiate this. Then we have PS dash is equal to, we have P1
plus 2 P2S plus 3 P3 S square and plus up to so on. Yes, ma'am. Now we will put S is equal to 1. Okay, because we are finding only for AX. So put S is equal to 1. Then we have P dash at 1 is equal to P1 plus 2 P2 plus 3 P3 plus up to so on. Which is equal to, because this first term, so here we are multiplying 1. This is second term, so here we are multiplying 2. Here 3, and next term we'll multiply with 4, 5 and so on. So we can write it as summation k is equal to 1 to up to infinity k into pk. Got it? Yes, ma'am. Yes. P dash 1. So this is same as formula of, as we have EX is equal to summation x into PX. Yes, ma'am. So we can write it as EX. Got it? Or, see, because here in a seed of K, we are using X. Or take one more term, which is equal to EK. Okay. Yes, ma'am. Yes. Or, because if we are using everywhere K, then we are taking this as EK. Or if we are doing for X, then we can use X. Okay. Okay, ma'am. And which is mean. Okay. So mean is equal to P dash at 1. Okay. Now you got? Yes, ma'am. Now we will differentiate this P dash again. Means this P dash. Yes, This ma'am. P dash we will differentiate. No. Sorry. In having S also this. Okay. To find variance. Now to find variance, differentiate P dash S again. Means second order derivative of P. So we will find 2 P2 plus 6 P3 into S plus 12 P4 into S square plus up to so on. Are you getting me? Yes, ma'am. अब हम इसको अगर हम एक्सप्रेस करें, प्रीवियस को अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते इसको, तो हम ऐसे कर सकते थे P डैश एस एस इज इक्वल टू summation k is equal to
हमने 1 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि p यहाँ से 1 है, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 टू अप टू इंफिनिटी k इंटू पी के इंटू एस टू द पावर k-1। k-1 क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट टर्म में 1-1 करेंगे तभी हमारी एस की जो पावर है वो 0 है। फिर 2-1 कर रहे हैं यहाँ पावर में, तभी हमारी ये एस की पावर क्या है, 1 है। आर यू गेटिंग मी? मैम I'm not able to see where are you writing this. हियर सी। इसके बाद मैम the last नहीं thing नहीं, I मैंने saw सिर्फ was P एक्सप्लेन double किया है कि dash. हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो k इज इक्वल टू 1 लिया, तो ये 1-1 हाँ जी. तभी इसकी पावर 0 है, इसकी वैल्यू फिर हमने 1 ले ली यहाँ पर पहली टर्म में, ठीक है। हाँ. सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है। अब अगर k इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो 2-1 इसकी पावर क्या है, 1 सेकेंड टर्म में, इसलिए सेकेंड टर्म में इसकी पावर 1 है। थर्ड टर्म में मीन्स इसके थ्रू, इस एक्सपेंशन के थ्रू हम इसको समेशन वाली फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि पावर एस टू द पावर k-1 है। गॉट इट? Yes मैम. अब हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, देखो वेरिएंस के लिए, कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या है, यहाँ पर एस टू द पावर ले रहे हैं हम देखो सेकंड सेकंड से स्टार्ट हो रहा है ये, फर्स्ट से नहीं है, तो हम k इज इक्वल टू 1 नहीं लेंगे, k इज इक्वल टू टू इंफिनिटी। ओके, टू Yes मैम. इंफिनिटी। और हमारी टर्म्स में क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अनदर वे में, इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ये सिर्फ रफ वर्क है समझने के लिए, इंटू P2 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, ये नेक्स्ट के की वैल्यू क्या है, 3, 3 K इंटू into थ्री K माइनस plus 1. वन K राइट, minus 1. So, प्लस नेक्स्ट टर्म है 4 इंटू 4-1 P4। ये सिर्फ वर्क है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। इट मीन्स कि जो भी हम के ले रहे हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर भी क्या ले सकते थे, इस 2 को 2 में भी यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं इसको भी। 1. हाँ, ये 2 इंटू 2-1 तब ये 2 ही आता, राइट। तो इसको हम अगर समेशन में लिखे तो एक तो ये 2 से स्टार्टेड है अप टू इंफिनिटी, और क्या है, k इंटू k-1 है, राइट। पी के मैम. इंटू एस टू द पावर भी सेम ही है ये k-2, पहले क्या थी, k-1 थी, अब यहाँ पे k-2 है। ओके, ये क्लियर हुआ? Yes मैम. Yes मैम. हम्म। अब हम क्या करेंगे कि s इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, p डबल डैश एट 1 इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 2 अप टू इंफिनिटी k इंटू k-1 इंटू पी के, क्योंकि s तो 1 हो गया, राइट। और यही फॉर्मूला है इसका। ई एक्स स्क्वायर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये मैं दिखा, इट मीन्स ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना था, वेरिएंस, और वेरिएंस के लिए हमें चाहिए ये, Yes हम्म, मैम. इसको हम कर चुके थे वेरिएंस के लिए, ठीक है। तो ई एक्स तो हमारे पास था, ई एक्स स्क्वायर नहीं था, क्योंकि यहाँ तो हम कर सकते हैं होल स्क्वायर का ई एक्स का, बट ई एक्स स्क्वायर नहीं था हमारे पास। ओके, Yes मैम. तो चलो अब इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ई एक्स स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद वेरिएंस को फाइंड करेंगे। चलो
ई एक्स स्क्वायर होता है ये। Yes, ma'am. ई इंटू, अगर हम एक्स की टर्म में फाइंड कर रहे हैं तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन। और ये किसके इक्वल है, जो हमने अभी फाइंड किया है। एक मिनट में यहाँ पे एक्सप्रेस कर दूं पहले, फिर इजी रहेगा तुम्हें समझने में। या हम के लिए ले रहे हैं तो हम के यूज कर रहे हैं। सिमिलरली हम एक्स के लिए कर सकते हैं, राइट, जैसे हमने पहले मीन के लिए किया था। और पी डबल डैश एट वन इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं अगर हम इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख रहे हैं तो ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये ई ऑफ के इंटू के माइनस वन, राइट, हम एक्स के लिए यूज कर रहे हैं तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। और वैसे ये क्या है Okay. ठीक है। अब हमें क्या करना है, ई एक्स स्क्वायर फाइंड। और वो किसके इक्वल है, ई एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अभी मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, प्लस ई एक्स। इट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, पी डबल डैश एट वन, और ये वैल्यू है E dash one. पी डैश एट वन। ये आया ई एक्स। अब हम फाइंड करेंगे वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, Square. फॉर्मूला। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, और ई Double एक्स, dash one. यस, सो पी डबल डैश एट वन प्लस Plus P पी dash डैश one. वन एंड माइनस Times पी P dash डैश, one का whole square. यस। So this is formula to find variance. Yes, ma'am. नेक्स्ट, अब हम और क्या कर सकते हैं कि अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू की फॉर्म में दिखाना हो, ये क्या था हमारा सेकंड फैक्टोरियल मोमेंट, ये दिस इज, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं सेकंड फैक्टोरियल मोमेंट। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फैक्टोरियल वाले फॉर्म में सी, जैसे हम कोई भी वैल्यू लेते हैं फिर इनटू दैट वैल्यू माइनस वन। कैसे, अगर हम लें फैक्टोरियल टू, तो फैक्टोरियल टू को टू इंटू वन लिखेंगे, और हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू माइनस वन, रिमेम्बर। तो हमने इस वे में इसको एक्सप्रेस कर रखा है, इसलिए ये फैक्टोरियल, वो भी सेकंड, क्योंकि इटसेल्फ तो है नहीं, हम क्या ले रहे हैं एटलीस्ट। आर यू गेटिंग मी। Yes, ma'am. मैम हम उसके फैक्टोरियल ले रहे हैं एक पॉइंट पीछे हाँ, तक, इसलिए सेकंड यस, फैक्टोरियल. यस एग्जैक्टली, इसीलिए हम इसको सेकंड फैक्टोरियल मोमेंट है ये। सिमिलरली हम, ये तो सेकंड है, अगर हमें केथ फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इस तरह से फॉर्मूला यूज कर लेंगे। Okay, ma'am. केथ
फैक्टोरियल मोमेंट। केथ के लिए हम क्या करेंगे, ई, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्स इंटू x-1 इंटू x-2 प्लस अप टू एक्स। x minus k. यस, हम ले रहे थे ये, बट ये ब्रैकेट ओपन कर दिया है इसलिए x-k+1 है। ओके, इजी इक्वल टू, क्योंकि हम इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में फाइंड कर रहे थे तो हम इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, सेकंड किया था तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे थे, राइट। Yes, ma'am. केथ के लिए केथ ऑर्डर लेंगे सिमिलरली। Okay. ऑफ पी एस, गॉट Yes, इट। ma'am. अगर हम इसके थ्रू हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है तो हम यहाँ पर s इज इक्वल टू ई टू द पावर टी लेकर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी टी एक्स लेकर हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमारा, अभी हमने इसको किससे फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू, राइट। ठीक है, Yes, ma'am. इसी के थ्रू अगर हम प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन की टर्म में अगर हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करें, वो कैसे करेंगे, वो इस तरह से कर लेंगे हम। if put s is equal to e to the power t, then ps is equal to e of sx, s to the power x, और वो, और क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि s क्या है, e टू द पावर t है, तो ऑब्वियसली ये हो गया e टू द पावर t x। और ये किसका फॉर्मूला है, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला है। तो ps की टर्म में हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू e टू द पावर टी एक्स। और e टू द पावर टी एक्स से क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। Okay, ma'am. क्लियर। Yes, ma'am. विच इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ओके, Yes, ma'am. अगर हम इसमें, यहाँ पर तो हमने पुट किया था, लाइक कि हम ये क्यों कर रहे हैं कि हम प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन को यूज करके अलग अलग जो भी टर्म्स हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, उनमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी हमने अब क्या किया, मीन एंड वेरिएंस में एक्सप्रेस किया। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस को फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ पीएस, ओके, उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में। Yes, ma'am. अब हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एक्सप्रेस कर दिया। अगर हम इसमें पुट करते हैं एस इज इक्वल टू आई, एस इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा टी, तब क्या होगा, उसके लिए देखते हैं कि फिर हम और क्या फाइंड कर सकते हैं। ओके Yes, ma'am.
मीनिंग इज दैट कि हम पीएस को यूज करके कितने कौन कौन सी टर्म्स को कितने सारे टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पुट कर रहे हैं इफ s इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा e, ps इज इक्वल टू e ऑफ s टू द पावर x, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम s की प्लेस पर हम e टू द पावर आयोटा t ले लेंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा t x। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर लिया। रिमेम्बर, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। Yes, ma'am. चलो चेक करते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट क्या लेंगे, इफ टर्म्स बाय इंटीग्रेशन बाय